السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ جی ناظرین، آج سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، وکلاء کمیونٹی اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے ایک احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے۔ وہاں پر کافی جو شرکا تھے انہوں نے خطاب کیا ہے، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، گوہر ایوب صاحب اور اس کے علاوہ محمود خان چکسئی اور باقی بھی کافی لوگوں نے خطاب کیا ہے۔ چلتے ہیں اس خطاب کی طرف، پہلے وہ خطاب سنتے ہیں، اس کے بعد آگے مزید بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے 27ویں ترمیم کے خلاف وکلاء، دانشوروں، اقتصاد کے ماہرین، جرنلسٹوں سب کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ قومی کانفرنس ہوگی، تحریک تحفظ پاکستان بلائے گی، اس میں ججز، جرنلسٹ، دانشور لوگ جمع ہوں گے اور پھر اکٹھا ہم سب نے اس بدبختی کے خلاف جو 3 دن پہلے پارلیمنٹ میں ہوئی، ہم مسلمان ہیں، قرآن حکیم پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک واضح اعلان کرتا ہے کہ میرے سوا ہر آدمی کا احتساب ہوگا۔ پیغمبروں کو وہ نہیں ملا، بڑے بڑے پیغمبروں کو، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہاں یار لوگوں نے مل کر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ زرداری کو اب سب کچھ سے استثناء، پہلے بھی یہ حکومت قاتل ہے، قاتلوں کی حکومت ہے، دہشت گردوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے بندوق کے زور پہ، ملٹری کی طاقت سے، اور عمران خان کی پارٹی کا مینڈیٹ چھینا۔ ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بالکل خیرات کی طرح بانٹی گئی، کسی پارٹی نے اس سے لینے سے انکار نہیں کیا، جعلی 2/3 میجارٹی کر کے آئین کی بنیادوں پہ حملہ آور ہوئے۔ یہ پارلیمنٹ اگر 100% بھی ایک پارٹی کے پاس ہو، وہ آئین میں ایسی ترمیم کا حق نہیں رکھتے کہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیں۔ بنیادی ڈھانچہ کیا ہے کہ یہاں سول میں سپرمیسی ہوگی، آئین دست ہوگا، فوج، عدلیہ سب اپنے اپنے ماحول میں آزاد ہوں گے، but they must be subservient to the elected parliament۔ اس پہ حملہ ہوا ہے شہباز اور پیپلز پارٹی اور ہمارے ان فوجیوں کے جو اپنی حلف کا احترام نہیں کرتے۔ ہم سے بار بار آئین کے دفاع کا حلف لیا گیا ہے، آئین وائلیٹ ہوا ہے، آئین ایبروگیٹ ہوا ہے، آئین کو برباد کر دیا گیا ہے۔ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اپنے اس سماجی معاہدے کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ اگر ہم نے دیر کر دی، خدا نخواستہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے، وہ اعلان کریں گے کہ نئی انسیساز اسمبلی، آپ نے یہ آئین پھاڑ دیا ہے، ہم یہ نہیں مانتے، نیا آئین، پاکستان بہت بڑے بحران میں مبتلا ہوگا۔ ہم نے نقشی کو گالیاں دینی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا جمعہ یوم سیاہ ہوگا تمام ملک میں، تمام ملک میں ہم سیاہ جھنڈے لہرائیں گے، جمعے کی نمازوں میں ہم نکلیں گے جتنی ہماری طاقت ہوئی۔ میری ریکویسٹ ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیاہ جھنڈیوں کا اور سیاہ دن کا اہتمام کریں۔ ہر جمعے کی نماز میں ہم علماء کرام سے کہتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نہیں، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، اس کفر کو، اس شرک کو، اس کا راستہ روکو جس میں چور، ڈاکوں، قاتلوں کو عمر بھر کا استثناء دیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے ہر عالم دین کا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعے کی نماز میں اس کو غیر اسلامی، غیر جمہوری، غیر آئینی اعلان کریں اور یوم سیاہ کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ، ہم نہ کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، عوام کی طاقت سے پرامن
अंदाज में हमने इस हुकूमत को, शहबाज एंड कंपनी को फारिग करना है और यहाँ एक जमहूरी आइन के जरिए, जमहूरी हुकूमत के जरिए एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें। कौमी कॉन्फ्रेंस होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बुलाएगी, उसमें जजेस, जर्नलिस्ट, दानिश्वर लोग जमा होंगे और फिर इकट्ठा हम सब ने इस बदबाती के खिलाफ जो 3 दिन पहले पार्लियामेंट में हुई, हम मुसलमान हैं, कुरान हकीम पे यकीन रखते हैं, हमारा आइन कहता है कि यहाँ इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज के दिन इस ईमान में हमारे अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मिनिस्टर और सेनेटर पे मुश्तमिल अरकान ने कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक के गेट तक ये वाक किया है। ये चंद एमएनएज और सेनेटर की वाक नहीं है, ये उन करोड़ों अवामों की नुमाइंदगी है। 12 करोड़ रजिस्टर वोटर में से 6 करोड़ वोट पोल हुआ था, उसमें 3 करोड़ वोट पीटीआई को पड़ा है धांधली के बाद। ये धांधली के बाद ये जो 3 करोड़ वोट है वो 76 से मैंने इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 सूबों की नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ईवान बाला में मौजूद है। ये वो सारे लोग आज निकले हैं। हम सिर्फ ये आवाज उठाना चाहते हैं कि हमें 26वीं तरमीम भी नामंजूर थी, वो गलत थी। हमें 27वीं तरमीम भी नामंजूर है, अवाम को नामंजूर है, वो गलत है। वो अदलिया पे वार है, वो अदलिया की आज़ादी सलब करने के लिए लाई गई है। उस आइन की तरमीम को हम रिजेक्ट करते हैं। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। हम उस वक्त तक स्ट्रगल करेंगे जब तक अदलिया की आज़ादी बहाल ना हुई हो। जुम्मे की विषय की बात भी करो ताकि मीडिया में राजा साहब आप बात करें, फिर अचकजई साहब और हम आज खड़े हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पीटीआई यहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे आज जहाँ खड़े हैं। हम इस काले कानून को रद्द करते हैं। इस काले के जरिए पाकिस्तान की अदलिया पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ कर दिया गया है। आपके मेरे जान मान इज्जत चादर चार दीवारी सबको लूट लिया गया है। आज इस मुल्क पर एक तारीख रात छा गई है। हम इस तारीखी को नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू करेंगे। हम मुत्तहद हैं, हम हर हद तक जाएंगे। आइन और कानून हमारा सहारा है, शराफत हमारा सहारा है। इस वक्त मुल्क में बर्बरियत का राज है, झूठ का राज है, फरेब का राज है। हम इस झूठ को नहीं मानते, हम इस फरेब को नहीं मानते। हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, हम हर किसान के साथ खड़े हैं, हर हारी के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, बलोच बहनों भाइयों के साथ जिनके प्यारे गुमशुदा हैं। हम लहू लुहान खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हैं जिन पे ड्रोन हमले हो रहे हैं। हम पंजाब के आवाम के साथ खड़े हैं जिनका हक छीन लिया गया, जिनके वोट को मुस्तरद किया गया। हम सिंध के हारी के साथ खड़े हैं, उसके पानी के लिए हम खड़े हैं। हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए, शराफत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे सेनेटर्स MNAs का मुश्तरका एहतजाज रिकॉर्ड करना था और आज दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुआ है और 27वीं आईनी तरमीम पास हुआ है, सबसे पहले तो इनकी जो तरीका था, प्रोसीजर था, वो जो रूल्स के मुताबिक है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, हैश में किया गया। और इसके लिए जब आइन में तरमीम करते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर और कंसेंसस से होते हैं। ये तरमीम जुल्म और जबर से नहीं होता। फिर उस असम्बली से ये कानून पास होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके साथ अवाम के मैंडेट ही नहीं है। ये फार्म 47 की असम्बली है, इसलिए इसके खिलाफ हम भरपूर तरीके से अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और ये हम इस हुकूमत को ये ऐलान करते हैं कि तुम जबर और जुल्म से जो कर रहे हो, पाकिस्तानी अवाम का इसके साथ किसी किस्म की हिमायत नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके खिलाफ हमने ये एक टोकन एहतजाज करा और जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह
पूरे पाकिस्तान में यूम सियाह मनाया जाएगा। और इसके अगले हफ्ते हम तमाम कौमी क़यादत को, तमाम लायंस लीडर्स को, तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उसको बुला के एक कम्प्रिहेंसिव लायबल बनाएंगे। ये मुल्क इस तरह जुल्म से, जबर से और डंडे से नहीं चल सकता। ये मुल्क चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हम 1973 के आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रखें। मैं इसमें मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान को और उनके साथियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जेल में उसके साथ रवैया रखा जा रहा है, जो उसकी मुलाकातें नहीं हो रही है, इमरान खान को कानून के मुताबिक मेरिट पे उसको इंसाफ दिया जाए और उसको पूरी तौर पर रिहा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ, जर्नलिज्म पे मार्शल लॉ और तहरीर व तकरीर की आज़ादी नहीं। आज भी सिंध में कोई जुलूस नहीं निकालने दिया जाता। सब पे 144 और गिरफ्तार होते जा रहे हैं वर्कर। इन 3 दिनों में कई सौ पे केसेस हो गए और गिरफ्तार हो गए। ये मुल्क में अगर मार्शल लॉ जो सामने अपने पपेट्स बिठा के और जमहूरी शक्ल दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये मार्शल लॉ की शक्ल देख ली है और हम इधर इस वफाक में रज़ना तौर पे इसमें शामिल हैं। हम इसके शहरी हैं। आप हमारे बुनियादी शहरी हुकूक या वन यूनिटरी फार्म गवर्नमेंट लाने के लिए बल्दियात को मरकज के कंट्रोल में देने, अपनी पार्लियामेंट को जूते के मिलिट्री के बूट्स के नीचे करने की और अदलिया को नीचे करने की हम मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह पूरे मुल्क की तरह हम सिंध में भरपूर आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखिएगा कि मुल्क के लाखों लोग करोड़ों की शक्ल इख्तियार करके इस जाली निज़ाम, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ये प्रमोशंस, ये जो इम्यूनिटी दी हुई है, ये सारे खत्म होंगे और आज़ाद शहरी अपना जमहूरी हक हासिल करेंगे। मेहरबानी। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने एलाइज की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से, इस वक्त काला कोर्ट भी खड़ा है, इस वक्त सियासतदान भी खड़ा है, सिविल सोसाइटी भी खड़ी है। हम यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और हमारे तमाम सियासी और जमहूरी साथी इस वक्त इमरान खान के साथ सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आके यहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इस सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें तमाम मुकर्रीन जो थे, बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने खिताब किया और इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और हुकूमत को जाली और गैर आइनी और गैर मुंतखब शुदा हुकूमत कह दिया है, क्योंकि ये फार्म 47 वाली हुकूमत है। ये मुंतखब होके नहीं आई, ना ही अवाम ने इनको वोट दिए। तमाम मुकर्रीन का ये कहना था कि ये काला कानून जो है 1973 के आइन को ख़त्म करके उसमें अमेंडमेंट की गई है, हम इस आइन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे और आने वाला जो जुम्मा होगा उस जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। और महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि KPK में PTI की हुकूमत है, वो खास एहतमाम करे झंडियों का और बैनर्स का और जलसे जुलूसों का इनेकाद ज़रूरी बनाए। जी नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।